Assalamu alaikum, Isha. Thank you so much for joining this session. Walaikum Assalam. Thank you so much for having me. It's my pleasure to have you on this session. We tried to connect before, but nevertheless, I'm happy that we're connecting it again. So thank you so much, Isha, for joining the session. So basically, the main reason of having these sessions is to get as much knowledge from industry professionals and try to understand कि what are the realities of industry, किस तरीके से काम करना चाहिए. I do have a lot of things to ask because you being in the product design career pathway, we are still in the phase जहाँ पे अभी भी layman को graphic design और product design का difference नहीं पता होता. So we'll be discussing all those things and let's see how the conversation go. But before that, I'd be happy if you can introduce yourself, tell me about yourself, how's everything, how's life, and then we'll start the session. Okay, so my name is Isha Naved. I graduated from Indus Valley around 2 years ago, 2023. I graduated with a degree in communication design where I majored in interaction design. After graduating, I worked at a fintech for about a few months, and then I switched to a B2B e-commerce company, which we've now switched to B2C, Mhm. called Bazaar Technologies. So I've been working there as a product designer for the last 1 year and a few months. Yeah, that's been my journey so far. Perfect. So let's start from very sketch because graduation is basically one of the very prior points in anyone's life, and you have graduated from one of the very finest schools, art schools in Pakistan, specifically in Karachi, IVS. Tell me, how was your decision? How was the decision? What was your thought process when you go to interactive design? Because interactive design is not something जो कि बचपन से लोगों ने plan करा होता है. People at your age, they are people at your age or my age, हम जब छोटे थे तो the main idea was कि हम बड़े होके पायलट बनेंगे and then बड़े होके हम डॉक्टर बनेंगे. 9 मैट्रिक में जाके आपको realize होता है कि it's not that easy and you shift to different fields. There are multiple fields जो कि बहुत नॉर्मली हम उसकी आवाज़ सुन रहे होते हैं मार्केट के अंदर. बीबीए आ जाता है, मीडिया स्टडीज के स्टूडेंट आ जाते हैं बिकॉज फॉर लास्ट 10 years we are seeing a lot of media students graduating and working for this tech related work. But when you're doing that specific degree in interactive design and choosing IVS as your 4 years of graduation school, इट्स नॉट अ डिसीजन कि जो आपने रात में ही ऐसे ही कर लिया होता है कि भाई ठीक है यार आज उठेंगे और कल से आईवीएस चले जाते हैं. तो हाउ वाज द थॉट प्रोसेस, व्हाट वाज योर आइडिया बिहाइंड इट? इज इट समथिंग दैट यू planned it out properly and then go to it, or it's something that someone suggested? Because in Pakistan almost 80% of our graduation depends upon कि यार चाचा मामे के बेटे ये कर रहे हैं या हमारे कजन या बहन भाई कर रहे हैं, ठीक है. बट बीइंग अ Gen Z, देयर इज अ वेरी बिग पार्ट कि आपके या तो मिलीनियल बहन भाई होते हैं, आपके बड़े कजन होते हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं अगर वो समवॉट सिमिलर फील्ड में है. सो व्हाट वाज योर स्टोरी आउट फॉर दैट? So honestly, credit to all the people around me who kind of pushed me because I had no idea what I wanted to do in my life. So I was doing my A levels in sciences and then I failed it. Failed all 3 subjects horribly. और मुझे तब भी नहीं पता था मुझे क्या करना है क्योंकि मेरा माइंडसेट ये था कि डॉक्टर बन सकते हैं या लॉयर बन सकते हैं या इंजीनियर बन सकते हैं. Or and on the opposite side was my mother who has been in the teaching industry for about 30 years. So उन्होंने मुझे बोला था कि तुम साइंस की बच्ची नहीं हो, यू कैन नॉट डू साइंस, तुम डिजाइन में जाओ, आर्ट में जाओ, इन सब चीजों की तरफ ध्यान दो. बट मेरे दिमाग में था भाई आप आर्ट पढ़ के क्या करते हो, डिजाइन का तो मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ आर्ट्स का था कि पेंटिंग हो जाती होगी, इंटीरियर डिजाइन थोड़ा बहुत हो जाता होगा, एंड आई हैड नो कॉन्सेप्ट कि उसका करियर क्या होता. So मैं अपनी जिद पड़ी हुई थी, but then when I failed, my mom was like, you know, I'm not listening to you anymore. You're going to do what I say. And then she switched me to humanities. फिर मैंने humanities में A levels barely pass किया, just enough to get into Indus Valley. Then I got into Indus Valley and I took that as kind of like a ray of hope कि मुझे एक opportunity मिली. उससे पहले तो मुझे लगा था जिंदगी खत्म हो जाएगी, शादी जल्दी उम्र में कर लेंगी या बात खत्म हो जाएगी. But ऐसा नहीं था. My mom had made it very clear that I will be educated. So फिर मैंने as a ray of hope उसको लिया and I really worked hard in IVS. तो फाउंडेशन ईयर के बाद we basically have to choose our majors कि आप इंटरेक्शन डिजाइन चूज करोगे या आप ग्राफिक डिजाइन चूज करोगे, फिल्म एंड मीडिया करोगे. सो उस वक्त मैं मीडिया की तरफ जाने वाली थी ओनली बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट आई रियली हर्ड ऑफ. ग्राफिक डिजाइन का सिर्फ ये सुना था कि सैचुरेटेड मार्केट है, इंटरेक्शन डिजाइन का कुछ पता नहीं था, गूगल करने से भी कुछ समझ नहीं आ रहा था. सो आई वाज लाइक ओके आई एम गोना ऑप्ट फॉर मीडिया. फिर जब मेरा इंटरव्यू हुआ मीडिया में जाने के लिए, तो उस वक्त जो इंटरव्यूज जो मेंटर्स मेरा इंटरव्यूज ले रहे थे, दे रिफ्यूज्ड कि हम आपको मीडिया में नहीं लेंगे, आपका जो फाउंडेशन ईयर का काम है दैट इज वेरी इंटरैक्शन डिजाइन रिलेटेड, कि वी थिंक यू विल डू अमेजिंग देयर. आपके सारे इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने प्रोडक्ट्स बनाए.
So we'll put you into interaction design. And at the time I didn't know. जैसी वो कॉल खत्म हुई मैंने लैपटॉप बंद करके जल्दी से गूगल किया कि है क्या. I didn't know what it meant. All I saw on Google was that it makes money, and I told my mom that it makes money, so I'm gonna do this. Not that I had an option, but then it worked out. I started really enjoying, and honestly, props to the teachers that we had because they made the curriculum a lot of fun. So उस पर फिर मैंने बहुत मेहनत की, which has now led me to where I am. Okay, before we discuss about the professional life, this is a very good point that you just raised कि career guidance बहुत important होती है, ठीक है? So there are two things that I wanted to discuss. First of all, what do you think अगर सही guidance होती है, how much impact it can do? Because for example, in your case, you have no idea to do what you wanted to Yeah. do, and one way or another, your mom and your teachers and your faculty tell you that this is the right step, and you did that, and now, mashallah, you are doing good and understanding this thing. Yeah. What sort of percentage that you wanted to give in your life care career guidance ने मेरी लाइफ का ये पार्ट बहुत सॉर्ट करा है. ऑल्सो मुझे एक और बात बताओ, व्हाट इज द, क्योंकि बीइंग एन आईवीएस ग्रेजुएट अ लॉट ऑफ टाइम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि व्हाट गोज व्हेन यू आर अ आईवीएस ग्रेजुएट. Hmm. पीपल नो इट्स अ वेरी फैंसी यूनिवर्सिटी, इट्स अ वेरी फैंसी स्कूल, बहुत अमीर लोग वहां पे जाते हैं. द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट अमीर लोग वहां जाते हैं, इट्स अबाउट द नेचर एंड द इंडस्ट्री एंड द ओवरऑल लुक दे क्रिएट, बिकॉज आईवीएस स्टूडेंट नो a lot of things much better because उसका स्ट्रक्चर बहुत अलग है. देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस जो कि मेरी हमेशा से डिबेट होती है लोगों से. यूनिवर्सिटीज दैट आर गिविंग यू मीडिया डिग्री, दे आर जस्ट गिविंग यू 43 कोर्सेज, जिसमें से बेयर मिनिमम आप शायद 10 कोर्सेज या 11 या 12 कोर्सेज आप पढ़ते हैं जो कि मीडिया रिलेटेड होता है. Yeah. द रेस्ट ऑफ द कोर्सेज आर सम वॉट, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, एक्स वाई जी सब चीजें आती हैं. द Mm-hmm. गुड थिंग ऑफ एन आर्ट स्कूल इज कि आप पहले अपना जो आपका जो प्रायर ईयर होता है, उसमें आप सब चीजें करते हैं जस्ट टू नो कि यार मुझे क्या करना है. और वो बड़ा फिजिकल एयर होता है जिसमें यू बिकम कारपेंटर, यू बिकम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, और उसके अंदर आपको बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि एवरी वन इज डूइंग इट. Yeah. एंड क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है, उसी की वजह से आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो दो आपके 1 या 1.5 साल होता है एकेडमिक ईयर, जिसमें आपको वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं. उसके बाद आपके मेंटोर्स, आपके फैकल्टी मेंबर्स ये समझ सकते हैं ओके फाइन, दिस स्टूडेंट हैज द एबिलिटी टू Mm. ग्रो इन दैट स्पेसिफिक फील्ड. सो गिव मी योर थॉट प्रोसेस, करियर गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, और व्हाट्स द मेजर डिफरेंस लाइफ ऑफ एन आईवीएस स्टूडेंट एंड लाइफ ऑफ एन नॉर्मल स्टूडेंट. So, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, for me, I will give 80% to the people who guided. क्योंकि if they hadn't guided me, I would not have known कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ. मैं वहीं फंसी हुई होती कि मैंने वही साइंसेस में कुछ करना है या लॉ में कुछ करना है. And I wouldn't have done well because I wasn't into those things and I didn't even know what I liked until I was guided to the right path. So in my opinion, 80% ये. And then the thing is, the next 20% जो मैंने मेहनत की थी, that was also because I was so motivated कि इतने लोगों ने invest किया है मुझ में कि they've put in the effort to explain things to me, to guide me to the right path. So I also need to do my best then. So आपके ऊपर एक थोड़ी सी accountability भी आ जाती है कि इतने लोगों ने अगर मुझ पे मेहनत की है तो फिर मैं भी तो आगे अपना best दूँ. So for me, it would definitely be the bigger chunk of my career is to them. As IVS for as a life student. so IVS वाली जो बात है, I do agree, it does, एक वो ठप्पा लग जाता है तो वो फायदा तो होता है. We get to see industry professionals a lot more. उसमें of course curriculum का भी एक बहुत ज़्यादा हाथ है. Like for example, हमारा कैपस्टोन का प्रोजेक्ट होता है where we reach out to all these industry professionals और हमें उनके साथ 4 महीने बैठ के काम करना होता है. Now इसमें आपको before you even graduate realize हो जाता है कि workplace is very different than being in university. So we worked with a fashion brand. हमने उनकी website वगैरह बनाई थी. I'm not going to name who, but it made us realize कि हर कोई is not easy to work with. There are people who are very difficult to work with, and आप कितने भी contracts बना लो, MOUs बना लो, वो उनके अपने थोड़े से नखरे आते हैं. So आपको people dealing भी आती है. So I think one thing that is really good about IVS is कि आपको इतना expose कर देते हैं to industry professionals कि आपको people dealing जल्दी आ जाती है.
So even if let's say हमारी juries होती है, they're very tough juries. Industry, I'm sure दूसरी universities में भी industry से लोग आते होंगे और वहाँ के कहते होंगे, but we also know that these are people we make impression on कि फिर ये हमें hire भी कर लें. I remember कि 2-3 jurors आए थे where I really wanted to impress them because these were workplaces where I would have loved to work. So then you give it your all as well कि okay हमें practically भी सोचना, you don't just think कि ये एक project है, ये इस project के हद तक ही है. You also think okay real world में how will this project even suffice? इसको monetary कैसे करना है, इसमें business benefits क्या हैं. So ये है कि आईवीएस ने ये बहुत किया कि बहुत early on हमें exposure इतना दे दिया था कि we knew how to deal with things. ठीक हो गया। तो मतलब पॉजिटिवली देखा जाए तो आप दोनों तरफ से सिक्योरिटी, यू गॉट करियर गाइडेंस एंड यू गॉट गुड मेंटोर्स एंड गुड यूनिवर्सिटीज दैट गिव्स यू एन एक्सपोजर ऑफ एन स्टार्टअप। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो स्टार्ट ही करना होता है, फिर तो आप आहिस्ता एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू नो द इंडस्ट्री। let's go to another stage of your life. You done your graduation and then you start your career. तो reality of क्या होता है कि मतलब is it very easy to get a job when you're an IVS student? Number one, is it applicable for everyone? uh, how difficult or easy you think? क्योंकि इसमें मैं एक चीज मेंशन करूंगा, बिकॉज अपने आप को सेल करने के लिए यू हैव दैट थीसिस और योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, बट यू नो कि यार वो मैं 1 साल 6 महीने या 1 साल ही सेल कर सकती हूँ, देन आई नीड टू हैव Yeah. समथिंग टू शोकेस, बिकॉज इट्स नॉट लाइक showcasing your final year project after 4 years of graduation. ठीक है. So how was your overall experience? How you get your first job? Realities कितनी अलग थी? Because making a project just to get grades is very different, and making a project to to real person and to real market is very different. So how was your experience when you moved from university life to your first job? कैसे मिली? क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको लगे, प्रोज एंड कॉन्स लगे? क्योंकि वो पहला रियलिटी होता है। क्योंकि समटाइम्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके स्टार्टिंग में अगर आपको प्रॉब्लम्स फेस हो जाती है ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है यार ये मुझसे चीजें नहीं करनी या ये इश्यूज हैं। क्योंकि व्हेन एवरीथिंग गोज बटरफ्लाइज तो आपको लगता है यार हर चीज ही सही है, आसान एंड था. आफ्टर एयर जब आप उस चीज को देखते हैं तो फिर आपको थोड़ा मसला होता है। स्टार्टिंग मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की टफ होनी चाहिए ताकि उनको चीजें पता चल जाए कि यार सही है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यू रिसेंटली ग्रेजुएटेड, इट्स बीन 2 years नाउ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरा काम बहुत अच्छा है। आई पर्सनली बिलीव कि हाँ सबका काम बहुत अच्छा है, बट यू हैव योर, ठीक है आपने रिसर्च करी, आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना दिया, बट वो कहीं ना कहीं 70-80% आपकी पर्सनल चॉइस ही होती है। क्या या मैं या ये कर सकती हूँ, मैं ये करूंगी। यू आर सेलिंग दैट थिंग ना, यू आर नॉट मेकिंग समथिंग फॉर इट। ठीक है। एंड बीइंग इन अ प्रोडक्ट डिजाइन फील्ड या इंटरेक्टिव डिजाइन फील्ड, उसमें डिजाइन इतना मैटर नहीं करता, उसमें मैटर ये करता है कि मैं सेल तो कर रही हूँ, बट क्या उसकी रियलिटी में अडेप्टेबिलिटी है नहीं है, जरूरत है भी या नहीं है। ठीक है। So how was your experience when you graduated from IBS and your first job? सो you're right कि हर किसी का सेम नहीं होता. हमारे खुद के बैच में there were a lot of people who took months in getting a job, and then there were a few जिनको कुछ हफ्तों में ही मिल गई थी. Luckily for me, I was one of the few जिनको कुछ हफ्तों में मिल गई थी. But the thing is कि मेरे साथ ये हुआ था, the person who hired me for Bazaar was at the thesis show. So he came to check out my thesis. और मैंने उनको बहुत because I knew who he was, मैंने उनको बहुत ज़्यादा sell करा था अपने thesis. I gave him reasoning to everything that I had done, which is what helped me also, because normally 3 rounds of interviews होते हैं, मेरे हुए भी सिर्फ 2 rounds से, because they were like second round जिसमें case study होती है, there is no point in doing that because we saw your thesis, and जो steps हमें analyze करने थे, we already analyzed that. So that helped because that person specifically came to my thesis cubicle and asked me questions और मैं वो कर पाई. A lot of people didn't have that. एक तो thesis show में बहुत ज़्यादा rush भी होता है. People, even if they're coming in, they don't have the chance to go through, recruiters don't have the chance to go through all of them. So a lot of my friends, they didn't have recruiters coming to their cubicles and asking them questions or hiring them, because of this reason. So I think a lot of it is luck also. But जो आपने बात की है selling yourself वाली, that is very true. Thesis में यही था कि a lot of people did conceptualization,
and then there were a few who did the monetary aspect कि real world में ये चलेगा कैसे. And I think a big difference between the two is एक group ने बहुत heavy testing की थी, user testing की थी, and then one group did not focus on the testing that much. They focused on conceptualization, which is fine. IVS does allow that. But what recruiters do look at is the reality of things, right? So मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने क्योंकि अपने टेस्टिंग के सारे फ्लॉज भी बताए थे कि टेस्टिंग से पहले कितने फ्लॉज थे मेरे उसमें, and then how I fixed those. I think that helped a lot. Which my recruiter also later on told me that not a lot of kids do testing अपने thesis में. So that was one thing we were looking for. So एक तो वो बात है. दूसरी ये, I think it also depends on the job market. Because जैसे हमारे juniors हैं, it took a lot longer for them to find jobs, mainly because we had already come in and taken the jobs. So अब, and product designers aren't exactly the cheapest graduating professionals, right? Mm. So हमारे juniors को कोई नहीं hire कर रहा था because people were like कि जो अभी seniors आए इन्हीं को we can just take forward. So Mm. they struggled a lot. So I think a lot of it is also timing. कि Mm. कब आप आ रहे हो, since we were the second graduating batch जिन्होंने major किया था interaction design में in Pakistan, so Mm. it was easier, a little bit easier for us. For them, it's a little bit more difficult. And I think वो आहिस्ता आहिस्ता होते भी जा रहा है difficult because again एक तो economy हमारी इतनी खराब हो गई है. दूसरा, there's people who are I think underselling themselves just to get jobs also. तो उनको फिर jobs मिल जाती हैं versus IVS people who are more expensive, I guess. Um, Debatable topic, but I really like the thought process जिस तरीके से आपने वो बताया. I personally believe कि universities, either if it's IVS or not, we are specifically discussing about IVS because you were there, and there is no doubt that it is one of the finest universities. I tried to get into it. I cleared all my tests and everything in 2015, 2014, and I was all selected. But yes, it's an expensive degree, and not everyone has the ability to do that. But at the same time, अगर मैं अब देखूं तो आपको ये बात पता चल जाती है after being in the industry for more than 7.5 years now. Degree is a part of your overall Yeah, yeah. personality. It's not everything. ठीक है. Mm-hmm. आई पर्सनली बिलीव कि आपके पार्ट में भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने भी वो चीज सेल करी. ऐसा नहीं है कि यू पुट अ बैज on your Yeah, code that I am an IVS graduate, hire me, yeah. and people are doing that. Because reality में भी लोगों को अब ऐसे लोग नहीं चाहिए कि जिनको स्पून फीड किया जाए. If you're not on बिल्कुल. an internship, to be very honest, ठीक है. Internship criteria is very different, ठीक है. उसमें लोगों के अपने experiences होते हैं. I personally think internship is more likely to just गेट टू नो के इंडस्ट्री काम किस तरीके से Yeah, करती yeah. है. बेशक आप उसमें कुछ सीखे ना सीखे, क्योंकि बहुत बहुत सारी फील्ड्स में सिर्फ इंडस्ट्री में रहने का भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है. ठीक है. इन योर केस यू सेल इट एंड इट वर्क्स फॉर यू. आई एम अज्यूमिंग हमेशा जगह वही इंसान बना पा रहा होता है कि जिसको ये पता होता है कि यार मैं तो आपको बेच रहा हूँ लेकिन आपके पास ये प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ. Being an interactive designer, being a product designer specifically, you are a problem solver. ठीक है. Although I consider every field as a problem solver, हर बंदे के पास हाँ. कोई स्किल सेट होते हैं और लोगों के पास प्रॉब्लम होती है. या तो मैं एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर पता हूँ मुझे कि प्रॉब्लम्स हैं कहाँ कहाँ पे ताकि मैं उनको हिट कर सकूं, या तो जिनको प्रॉब्लम्स हैं मैं ऐसा कोई पाथवे बना सकूं कि वो मुझसे रीच आउट कर सके. ठीक है. दिस इज द मार्केट वर्क्स. ठीक है. सो in your case it's worked perfectly fine, and mashallah after 2 years you are working in one of a very good startups. Okay. We'll get back to the startup thing as well, but why do you think, like, what growth plan that you think यार product design की है, क्योंकि product design till the date is not a Hmm. design job. I Hmm. don't consider as product design as Okay. a design job क्योंकि वो है ही नहीं प्रोडक्ट डिजाइन. उसको बस कहते प्रोडक्ट डिजाइन है. क्योंकि I have a lot of friends who works in Revolut, Google, Hmm. OpenAI, and they all are very good product designers. And when we talk, it's more like understanding the audience कि यार ये solution provide कर रहे हैं. अब प्रोडक्ट डिजाइनर्स डिजाइन इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट ही इंटेंजिबल है. अगर हाँ. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ये माउस है, ठीक है, तो इसकी इसकी
पॉजिटिव साइड, इसकी नेगेटिव साइड देखी जाएगी, ठीक है। बीइंग एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर आपको क्या लगता है, क्योंकि नाउ यू आर इन योर अर्ली स्टेजेस, यू हैव been working for a year now, Hmm. what's the right mindset a person should have? ठीक है, उसको टूल्स आने चाहिए, या Hmm. उसको रिसर्च अच्छी रखनी चाहिए, ठीक है, या उसको क्या ऐसे पॉइंटर्स आप बताना चाहोगे कि यार इन चीजों पे आपको मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज कंपनी इज नॉट ओनली hiring people for big universities, or if they are, the reality don't stop over here. हायर Yeah. होना, आई थिंक पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम है, बट मैं उसको कहता हूँ सबसे आसान काम है। सस्टेन रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हायर तो हर कोई हो जाता है, So ठीक है, true. क्योंकि आपका एक इंटरव्यू, आपका एक सीवी, आपका एक प्रोजेक्ट देके कोई हायर कर लेगा। आप कितना रिलेटेबल रह सकते हो, कितना सस्टेन करते हो उस कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। Hmm. एनी पॉइंटर्स दैट यू थिंक कि यार लोगों को इस चीज पर जरूर फोकस करना चाहिए टू बी सस्टेनेबल इन एनी कंपनी, रिगार्डलेस कि वो प्रोडक्ट डिजाइनर हो या ना हो, या डिजाइन फील्ड में हो? I think at least for people who are new to their careers, I don't think we can be restrictive कि ये चीज होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए, या मैं सिर्फ रिसर्च पे फोकस करूंगी या सिर्फ अपने स्किल्स सेट इम्प्रूव करने में करूंगी. आई थिंक इट्स एवरीथिंग, a little bit of everything कि you should not restrict yourself. या फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कि एक प्रॉब्लम है एक प्रोडक्ट में, उस पर मैं रिसर्च भी करूंगी, मैं जाके लोगों से बात भी करूंगी, मैं फिगर आउट भी करूंगी कि ये प्रॉब्लम ऑथेंटिक प्रॉब्लम है भी या नहीं है. So it's really being open to everything, and then to solve that problem you obviously need the skill set to be able to solve it, right? So again, we live in a world that's very, technology is moving so fast, आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ती है साथ साथ. So you also need to be open to learning newer things. आज Figma है, कल नहीं होगा, there will be some other software, and you need to be able to learn it. So I think being open to other criteria as well कि मुझे रिसर्च कोई और करके ला के देगा, मैं सिर्फ अपना यूआई बनाऊंगी, या मैं ब्रांडिंग नहीं करूंगी, मैं सिर्फ यूआई बनाऊंगी. हमारे साथ भी ऐसा, वी हैव अ होल ब्रांड टीम विद अस, बट वी डोंट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ कि नहीं हम सिर्फ प्रोडक्ट पे ही देखेंगे. इफ वी थिंक वी कैन इलस्ट्रेट समथिंग वेल, वी डू इट. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम का सबसे अच्छा आइडिया हमें होना चाहिए कि हम एज प्रोडक्ट डिजाइनर्स व्हाट द प्रॉब्लम इज, व्हाट why the problem is happening with the users, ऐसा users के क्या हमारा persona है, and how we're solving for it, सबसे अच्छा idea तो हमें, right? So you should really be able to tap into everything, yeah, and to honestly get out of your shell. पे टेस्टिंग करनी है, लोगों से बात करना अनकंफर्टेबल होता है, रैंडम स्टोर्स पे जाके, इम्तियाज जाके, हम लोग जाके रिसर्च करते हैं, इट इज अनकंफर्टेबल, बट यू हैव टू डू इट. For not just for the product but for yourself as a product designer. अगर मैं जाके लोगों से, रैंडम लोगों से बात नहीं कर सकती और उनको एक चीज दिखा के उनसे उसके बारे में सवाल नहीं पूछ सकती, then I won't grow as a person either. मुझे क्या पता कि जाके लोगों से किस तरह से कम्युनिकेट करना है या किस चीज को टारगेट करना है, when I'm asking questions. So it's also that, and it helps you understand people better also. वही again जो empathy वाला part आता है हमारे principles में, that is where it comes from. You talk to people and then you learn to empathize with them. So it's really, I think, staying open to all kinds of experiences. ठीक हो गया, आई थिंक यू डाइवर्टेड द क्वेश्चन वेरी वेल, क्योंकि वो मेरा नेक्स्ट सवाल या नेक्स्ट डिस्कशन यही है कि यू आर वर्किंग इन स्टार्टअप. स्टार्टअप इज नॉट दैट इजी, ठीक है। Hmm. पाकिस्तान की इकोनॉमी में वैसी बड़े से बड़े बिजनेस अब, because in last 2-3 years big names, big companies are backing off, ठीक है, Yeah. and working in a startup come up with pros and cons, ठीक है। I wanted to know, being as a Gen Z, ठीक है, Hmm. क्योंकि आप लोग को इंडस्ट्री इस तरीके से देखती है कि आप लोग के अंदर बहुत हिम्मत है चैलेंजेस लेने की। अब सॉरी फॉर माय वर्ड, बट बहुत बड़ा कीड़ा है जेंजी के अंदर, क्या कर लेंगे, क्योंकि जेंजी के पास बहुत बड़ा सेफ्टी नेट होता है, या तो मिलीनियल या तो उसके अम्मा अब्बा, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस अलग है, ठीक है। आई पर्सनली बिलीव, मैं सब जेंजीज को एक जैसा नहीं कहता, क्योंकि यस देयर आर जेंजीज जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे होते हैं घर की, क्योंकि एवरी 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 पर्सन इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। Yeah. But we need to understand 2025 is the year, and moving forward, Gen Zs are not just students. They are graduated. They are earning for Yes. more than a year or 2 years now, more than that, or maybe, and they know what is right, what is wrong. Now they are not just giving logic कि मुझे सही लग रहा है. Now they are giving logic कि क्या सही है, क्योंकि वो चीज मैं कर चुका हूँ या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है।
At what point do you think you're being as a product designer, do you think a startup is a good choice? Because in a startup you are doing not only one thing, ठीक है? And I think आपका रगड़ा स्टार्टिंग में जितना लग सकता है आप लगवाएं, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि उसमें आपको खुद भी पता चलता है कि आपकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं क्या, ठीक है? Yeah, yeah, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एवरीवन शुड फॉलो और should be like यार हमें, so basically there are three type of people. Let's discuss that or try to connect the dots. There are three type of people. Number one, जो कि जर्नलिस्ट होते हैं, जो सब चीजों में एवरेज होते हैं, ठीक है? yeah. एंड पाकिस्तान में वो बेस्ट है। आपको सब आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, और आप कहीं ना कहीं मैनूवर कर लोगे। यहाँ नहीं चलेंगे, वहां चले जाएंगे, वहां नहीं चलेंगे, यहाँ चले जाएंगे, ठीक है? Yeah. Then it comes to master of one, and then sorry, then it comes to good at one, and the rest will be good. Okay, ठीक है, I'm a product designer, but I know how to edit and how to do this and how to do that. And then there is the third one who is like master of one, nothing less. They know only one thing and they are focusing on that. ठीक है? I think master of one ज्यादा अच्छा फोकसली काम करते हैं एमएनसीज में, क्योंकि वहां पर उनको पता है आई ओनली नीड टू फोकस ऑन दैट थिंग, एवरीथिंग विल बी पुटेड इनटू प्लेसेस, और वो उस तरीके से चल रहा होता है, जहाँ पे बहुत स्केड्यूल चीजें होती है। जर्नलिस्ट का फायदा ये होता है कि आपको पता होता है आप एवरेज पे सब अच्छा होते हो, बट मुझे ऐसा लगता है जो स्वीट स्पॉट है वो ये होता है कि यू आर मास्टर ऑफ वन एंड आपको बाकी नॉलेज भी हो, ठीक है? एंड प्रोडक्ट डिजाइन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सम टाइम इट मेक सेंस कि यार ऐसा करना चाहिए, बट वो सही नहीं होता, ठीक है? बीइंग एज अ मार्केटर, अगर आपके पास कोई मार्केटर आता है वो कहता है कि यार आई एम थिंकिंग ये ऐसा होना चाहिए, so rather than you just made it and then it doesn't work, you should have a counter argument कि why, Yeah, ठीक है? अब why is a very important question in product designing, क्योंकि बनाने के बाद why नहीं होता ना, बनाने के बाद मेहनत कर ली, ठीक है? yeah, तो why, how do you think यार this overall attitude, because हर बंदे का ऐसा होता नहीं है वेलकमिंग थीस कि ठीक है यार मैं ये भी सीखूंगा, मैं ये भी सीखूंगा, मैं ये भी सीखूंगा, बिकॉज पीपल आर लाइक, बहुत सारे जेंजीज होते हैं, नहीं भाई हम अपने हिसाब से चीजें करेंगे, ठीक है? सो व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस ऑन वर्किंग इन a startup, working for different thing, because you are wearing, sorry, you are wearing different hats. yeah. You are a product designer, you are a researcher as well, you can also doing something. So how was your experience in that thing? Honestly, it's been great, or and I'm actually grateful कि मैं पहले startup में काम कर रही हूँ before I started, I don't know, corporate जहाँ पे आप एक ही काम कर रहे हो, तो because आपको confidence भी ज़्यादा आता है. They make you do so many things, you also gain confidence. I'll give you an example. हमारे बाजार में we, from designers to co-founders, everyone's also doing customer care calls. और बस हम customers से बात करते हैं, तो एक तो I can ask specific questions, right? As a product designer, मैं अपने मतलब के भी सवाल उस customer से पूछ सकती हूँ, whoever I'm calling. But also it gives you perspective कि दूसरे लोगों का काम क्या है. So let's say कल को care मुझे अपने किसी platform के पास आके कहते हैं यार ये मसला हो रहा है, I can at least fathom कि मसला क्या है and help them through it, right? पर उसके अलावा भी आपको confidence आता है at a very young age, if you're doing every things you didn't even think कि आप करोगे. I never thought I'd be making customer calls, but अगर आप कर लेते हो तो फिर आपको जो आपका खुद का काम होता है उसमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है. सो फॉर एग्जांपल if I am solving a problem for हमारा कोई नया फीचर आ रहा है, let's say, I can now argue with my team members better कि मैं ये क्यों बना रही हूँ. भाई मैंने कस्टमर से बात की थी, उन्होंने मुझे ये बताया था, which is why we're now working towards this. So it helps. And then एक और बात ये होती है कि you can also help with planning that. आप PMs के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो, आप उनके साथ प्लानिंग में, रोड मैप्स में हेल्प कर सकते हो, because you're already ahead of things. You're already not just staying within your own boundaries. आप उसको push करके आगे जा रहे हो. So I guess that's also a good way of climbing the ladder as well. आपके relationships, professional relationships भी अच्छे हो रहे हैं. The PM can rely on you, co-founders can rely on you, and also you can, for people who want to quickly get promoted, it works for them too. So it's really, all in all, it's beneficial to you only कि आपके खुद की नॉलेज बढ़ रही है, आपके रिलेशनशिप्स बढ़ रहे हैं, आपका करियर भी स्काईरॉकेट कर रहा है. सो आई थिंक स्टार्टअप्स, ऑनेस्टली एनी न्यू पर्सन आई वुड सजेस्ट गोइंग टू अ स्टार्टअप, क्योंकि वही बात है, रगड़ा शुरू में आप
शुरू में आप अगर सहने को भी तैयार होते हो, आगे जाके आप खुद भी रिजिड होते चले जाते हो कि यार मैं क्या 30s में बैठ के मैं ये वाले काम करूँ। शुरू में तो ऐसे फ्लेक्सिबल भी होता है। आई थिंक यू शुड मेक यूज ऑफ दैट फ्लेक्सिबिलिटी। It's flexibility is also the mindset. So I personally believe it's early 20s, it's your mindset is totally different. You are open for that. Your body allows that to not sleep for 48 hours. Mid 25 is different, and late 30s and early 30s are totally different. और आपकी priorities change होती हैं. It's not about one way or another. It started off with passion, but then you need to understand कि you need to earn money to लिव Yeah, योर लाइफ. जिंदा रहने के लिए पैसे बहुत जरूरी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज करनी होती है, बट देन यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हेन टू से नो. A lot of people do suffer that because they are very easygoing and they usually don't realize कि यार when to say no. Because my one of my mentor told me that if no one is hating you, then you are not growing. People should hate you. yeah. अगर आपको लोग पसंद नहीं करते, इसका मतलब आप वाकई में तरक्की कर रहे हैं. एंड इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इफ यू कैन होल्ड योर थॉट्स कि भाई आई थिंक ये सही चीज है एंड आई वांटेड टू डू Hmm. इट लाइक दैट वे, देन यू विल टेक ऑल द लाइक यू विल टेक ऑल द पॉजिटिव चीजें, या अगर वो चीज ब्लास्ट ऑफ होती है अच्छे से, तो आप कहते हो कि ये मेरा आइडिया है. ठीक है. Yeah, yeah. कभी कभार लोगों का क्या होता है कि लोग बहुत इजी गोइंग होते हैं. ठीक है. आई वांटेड टू नो के हाउ अ जेंजी थॉट प्रोसेस इन दैट कि यू थिंक यार देयर शुड बी अ राइट स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, बट दीज आर द टाइम दैट आई एम अवेलेबल. इसके बाद देर इज अ लाइफ दैट आई हैव. क्योंकि Hmm. जब आप बहुत ये मैं खैर अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी एट द एंड ऑफ द डे नौकरी होती है. उसको नौकरी के तरीके से रखना चाहिए, until or unless कि वो आपका अपना बिजनेस नहीं है. ठीक है. बिकॉज एवरी वन इज कमिंग टू वर्क टू अर्न मनी एंड गो बैक होम. A lot of time early stages when people are doing this, saying yes to everything, they found up कि लोग उनको बोलते हैं अरे ये बहुत easy going है, and they try to burden him things कि यार आप ये भी कर लो, आप ये भी कर लो, आप ये भी कर लो. ठीक है. Do you think this mentality is right or wrong? What's your thought process on it? So मैंने तो शुरू से अपनी बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाई थी कि आई विल नॉट वर्क आफ्टर 6 and not before 9. I was very strict with this. No weekends, nothing. Mainly because I had seen my parents working on the weekends and I never understood the concept. तो लेकिन उसमें होता ये, while that is a good thing, मुझे अपनी बाउंड्री सेट करने आ गई. I learned how to say no, and people also respected it कि okay, this person does not work after 6. मगर मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं विद दैट एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट बाउंड्री आई वाज आल्सो losing लोगों की reliance on me. So for example, there are people who still, I mean, especially millennials, I guess, office mein, who sit till like 8 p.m. working. And I'm not going to sit till 8 p.m., but I will push my boundary from 6 to 6:30 maybe to get that one last thing done. Because मैं ये नहीं चाह रही कि while setting my boundaries, I become so like लोगों को लगे कि मैं डिपेंड, वो मुझ पर डिपेंड नहीं कर सकता है. They can still depend on me. So I think होनी चाहिए boundaries, but there should be a limit to the boundaries too. You can't just be very strict, especially इतना young. आप एक वो बना लो, I think अपना एक लेंस बना लो कि यही है और इतना ही करना है. I don't think that really works well. I've tried it. It worked well in the sense कि अब मुझे कोई 6:30 के बाद तंग नहीं करता. मगर I am also flexible कि okay, अगर मेरा कहीं पे एक आध घंटा मिस हो गया, then I can work on the weekend for that 1 hour. But does my life revolve around it? No. Should anyone's life revolve around it? No. Because at the end of the day, you're right. It's just work. And also, बट it's very मेरा पॉइंट, सो सॉरी टू कट यू, बट मेरा पॉइंट ये होता है कि अनटिल और अनलेस आपके काम करने से कंपनी बंद नहीं हो रही. ठीक है. या तो अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ कि आप कि यस और नो और आपके काम करने ना करने से कंपनी बंद हो जाए, देन यू आर एट द पॉइंट कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा काम करना चाहिए. नंबर वन. नंबर सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए आप किस कैरियर पाथवे में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर आप मार्केटिंग में हैं, ठीक है, और आपको पता है कि कोई चीज 12 बजे कैंपेन लाइव हो रही है, क्योंकि मैं अपनी ओवरऑल एक्सपीरियंस में बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में रहा हूँ. ठीक है. एजेंसी लाइफ बहुत अलग होती है,
when I was in the Raj, it's totally different ball game because we know कि कैंपेन 12 बजे लाइव होगी तो we need to be there, ठीक है. बट इन प्रोडक्ट डिजाइन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कोई चीज अभी बनाएंगी तो वो कल डिप्लॉय हो रही है, ठीक Mm-hmm. है. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया में इतना काम है नहीं. दुनिया में जितनी भी कंपनीज है ना वो 8 घंटे ही काम कर रही हैं. True. मुझे ऐसा लगता है कि इट गोज लाइक अ रेली रेस, रेले रेस होती है. ये वाला बंदा अपने सिगरेट स्टॉप्स की वजह से काम नहीं कर पा रहा, तो वो जो अपना पार्सल है वो देर में देता है. फिर इस वाले Mm-hmm. बंदे को पॉज रहना पड़ता है ताकि वो काम करे. एंड इट्स अ चेन, Yeah, ठीक yeah. है. सो सेटिंग बाउंड्रीज, आई टोटली एग्री कि हाँ यू शुड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है. बट यू शुड बी वेरी आउटस्पोकिंग टू गिव द थॉट ऑफ इट. क्योंकि बहुत सारी मसले जो स्टार्टिंग में मैंने देखे वो ये होता है कि लेट्स बी वेरी क्लियर टू डिस्कस दैट कि योर एजुकेशन, योर स्किल सेट इज ओनली टेक यू एट वन पॉइंट. उसके ऊपर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही लेके जाता है, ठीक है. बिकॉज अ वीपी डिजाइन डोंट डिजाइन थिंग्स, अ वीपी डिजाइन डिजाइन द स्ट्रक्चर, ठीक है. कि वो स्ट्रक्चरली चलेगा कैसे, ठीक है. वो टीम Mm-hmm. मैनेज कैसे होगी, वो टाइमलाइन कैसे मैनेज होगी, ठीक है. क्योंकि जब आप इनिशियल लेवल पर होते हैं तो आपके मैनेजर्स, आपके टीम लीड वो चीज कर रहे होते हैं. बट इफ यू वांटेड टू रीच टू दैट लेवल, तब भी आपके पास 8 घंटे ही होंगे. आपको अपना काम भी करना पड़ेगा और आपको टीम भी मैनेज करनी है. तो जब आप वो Mm-hmm. चीजें बाउंड्री में सेट कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है. एंड पीपल शुड टेक यू एज लाइक केयर. दिस इज व्हाट another thing that my mentor told me कि इफ यू आर पुटिंग अ स्टोक, लोगों को पता होना चाहिए वो स्टोक बहुत अहमियत रखता है, ठीक है. Mm-hmm. सो ईदर इट्स अ स्मॉल थिंग और नॉट. आई पर्सनली थिंक इन मोशन डिजाइन एंड आई थिंक इन प्रोडक्ट डिजाइन एज वेल. और ये मैं सबको टिप देता हूँ जो भी जूनियर्स हैं या जो भी लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं. व्हेन यू मेक समथिंग, लोगों को बताओ कि उसमें एफर्ट लगता है एंड ओन इट, ठीक है. सो फॉर Yeah. एग्जाम्पल समटाइम आई एनिमेट फॉर 3 seconds, a very Mm-hmm. small animation, ठीक है. बट देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस वो जो गोरे के काम में और जो पाकिस्तानी मार्केट के काम में. And I understand it after a very long time working for different people, working with different people, and understanding because they know how to sell it. They are focusing on it. वो छोटी चीज को बहुत बड़ा करके बना सकते हैं rather than आप बहुत बड़ी चीज बनाओ उसको फिर बेच नहीं सके. So that's also help. Moving forward, ठीक है. ऑलमोस्ट 1.5 2 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर. बीइंग एन जेन जी, व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल प्लान राइट नाउ? क्या यार आपने मुझे ये करना है बिकॉज नाउ यू नो कि यू वांटेड टू डू प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है. बिकॉज दिस इज द ओनली वन एंड द ओनली जॉब दैट यू आर डूइंग फॉर मोर देन अ ईयर, Yeah. ठीक है. एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप उसको पसंद कर रहे होंगे वरना जेंसीज हैव द एबिलिटी टू Leave. sin to leave at Yeah. any moment, ठीक है. Yes. So at this time right now, how do you want to see yourself when you are 27, 28, 29? So I'm going to be very honest. I have always wanted to create a product with some social impact. Hmm. I am very inclined towards working for maybe children with autism or children with Down syndrome. So hopefully, having started a product with that, my thesis was also that. My thesis was on children with autism. So maybe improving that, finding the right people who can help me, mentor me through it, and then bring that to life. So hopefully by 27, I'll be having some sort of started on my social impact project. Good enough. So main reason of asking this is your long-term goal should be written in a very bold letters Hmm. because your short-term goals can be changed. लोगों का Yes. मसला ये होता है कि और ये मैंने ग्राफिक डिजाइन के अंदर बहुत देखा है. People in Pakistan don't know how to sell themselves. They sell on a very less pay wage कि यार आप Hmm. 500 दे दम कर देंगे, आप 1000 दे दम कर देंगे. बट यू when you see the international market, ठीक है. और फिर जो आपको वो सवाल होता है लोगों को, यार वो इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कभी आपको उनसे बात करके देखना चाहिए. द वे ऑफ कम्युनिकेशन, द ट्रांसपेरेंसी एंड द पाइपलाइन, लोग उसके पैसे देते हैं. लोग Hmm. काम के पैसे नहीं दे रहे.
दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो मुझे लगता है बहुत ही कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर रहा है, क्योंकि राइट नाउ इन 2025 एवरीथिंग इज इटरेशन ऑफ एन इटरेशन ऑफ एन इटरेशन, और इट यस, सेज कॉपी ऑफ एन अ एग्जैक्टली। कॉपी ऑफ एन अ कॉपी। ठीक है, उसके अंदर आप 5-10% अपना डाल देते हैं। ठीक है, हाँ। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। आप ये एप्स के अंदर देख सकते हैं, यू ओपन करीम, करीम ने एक चीज करी, दूसरी आपने वो चीज कर ली, दूसरी आपने वो चीज करी, यप। तीसरी आप वो चीज कर लेगी। बिकॉज ऑब्वियसली बात है ना, आपके पास दो ही चीज है, या तो भाई ठीक है शुरू से रिसर्च करो, उसको कैरी फॉरवर्ड करो, या अगर कोई बंदा कर रहा है तो आई एम प्रीटी मश्योर उसने वो रिसर्च करी हुई है, तो उसको कॉपी। मैं उसको कॉपी नहीं कहता, मैं उसको ये कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल के एक चीज सही है, ठीक है, तो देर इज नो हार्म टू सेल। इट्स लाइक व्हेन यू गो ऑन अ मार्केट, हर बंदा सब्जी बेच रहा है, हर बंदा ग्रोसरी बेच रहा है, तो एक साथ 10 लोग क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि इतना सप्लाई एंड डिमांड है कि कहीं ना कहीं तो मैं फिट इन हो रहा हूँ। सही है, हम्म। आज उसके पास ही नहीं होगी, मेरे पास, तो मैं ये बेच दूंगा। ठीक है, एट द सेम टाइम इट, और इसी तरीके से होता है। ठीक है, और पाकिस्तान में वैसे भी अब जाके माशाल्लाह से वी हैव इंक्यूबेशन सेंटर, अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर कमिंग, बट स्टिल इकोनॉमी फैक्टर्स बहुत इंक्लूड होते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, क्या कंपनी मुझे अलाउ करेगी? तो उसको बैकअप करने के लिए आपको रिसर्च बहुत चाहिए होती है। हम्म। ठीक है, बिफोर यू कैन डू दैट। एंड आई थिंक यू शुड नो अंडर यू शुड बी व्हेन यू आर इन अ क्रिएटिव फील्ड, जब आपका काम एज अ क्रिएटिव है जो लोगों को नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि यार वाई प्रोडक्ट, जो अभी आपने बात कही थी शुरू में कि वाई प्रोडक्ट डिजाइन इज एक्सपेंसिव और अ रिच फील्ड, क्यों हम्म। लोग पैसे दे रहे हैं? बिकॉज लोग एआई के प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट के लिए स्क्रीन चाहिए, वो सही काम करेंगी तो एआई का प्रोडक्ट काम करेंगे, एआई के प्रोडक्ट काम करेंगे तो वीसीस पैसे देंगे। इट्स अ चेन। ठीक है, एक बैनर से, दिस इज द रियलिटी जहां पे ग्राफिक डिजाइनर्स को ये समझना चाहिए। एक बैनर के होने ना होने से सेल्स ऊपर नीचे नहीं होगी, लेकिन एक बटन के होने ना होने से फ्लो में मसला आएगा और चीजों में मसला होगा। ठीक है, 100%। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, बीइंग एन जेंजी, ठीक है, नाउ यू नो क्या, ठीक है मैं अब उस पटरी के ट्रैक पे तो आ चुकी हूँ, अब मुझे इसको फॉलो करना है। बट what's your thought process on personal brand? Because आई पर्सनली बिलीव लोगों को एक बहुत बड़ा मसला होता है कि वो अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को अपने अपने साथ बहुत अटैच कर हम्म। लेते हैं। ठीक है, मुझे भी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यू डोंट अटैच द नेम, यू अटैच द पीपल अराउंड यू, क्योंकि यू यस। लाइक, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज के साथ अपने माँ बाप से ज्यादा टाइम गुजारते हैं, उनके साथ आप 8-9 घंटे गुजारते हैं, घर पे 3-4 घंटे गुजार के सो जाते हैं। तो अगर हम्म। टाइम मैनेज किया जाए तो आप अपने माँ बाप से ज्यादा टाइम अपने एम्प्लॉयज के साथ गुजारते हैं, अपने 100%। दोस्त, जो आपके दोस्त बनते हैं, और यू लाइक दैट ओवरऑल एनवायरमेंट। ठीक है, but also it's very attached and unattached at the same time. They are very important when you are in the company. You left the company, you give same time to other people, and those people will be important. Okay, Yes. so how do you think making your own personal brand matters? Because at the end of the day, it should be Isha Naveed, it's not XYZ company. Mm-hmm. Do you think it's important how you're doing it? Any tips and tricks on that? It is important, and I don't think I have it down कि किस तरह से करना चाहिए, because I think I am one of those people who are still learning that. Mm, Recently I gave an interview और उन्होंने मुझसे कहा कि आप बाजार की क्या सेल्स एसोसिएट हैं? I was like नहीं क्यों? Like because you're selling bazaar to us, which is when I basically learned that this is the thing where, oh, you're either an employee of a certain company or you're Ishana Ved, the product designer. So उस पे ये था, मुझे कहीं ना कहीं एक पिंच हुआ था कि oh, but Ishana Ved did design whatever is going on there, but obviously people don't know that. So I think I don't know if I can give tips or tricks, but I can say कि आपका पोर्टफोलियो इस तरह से होना चाहिए कि वो ये ना हो कि ओ बाजार को ये मसला हुआ तो बाजार ने ये चीज सॉल्व की। आई थिंक इट शुड बी मोर कि ये मसला था प्रोडक्ट में, एंड देन दिस इज हाउ द अप्रोच दैट आई टुक। मैंने इस चीज को इस तरह से रिसर्च करके mm, लिया, दीस वर द रिक्वायरमेंट्स एंड दिस इज हाउ व्हाट आई अंडरस्टूड ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, mm, और मैंने मेरा प्रोसेस यही है था, एंड देन इवेंचुअली दिस इज व्हाट वी वेंट mm, विद, बिकॉज आई थिंक
you're right कि selling yourself is a big deal. Um, कि especially in product design आपको अपने आप को ही sell करना होता है. I don't think it's a good feeling when someone says कि oh आप बाजार की sales associate हैं. So हाँ, it is very important. How to do that? I don't think I'm the right person to answer that. ठीक है, it's fair enough because right now um, that is also one of the very important thing मुझे बड़ा पसंद आता है when I'm talking to any of my sessions I meet to Gen Zs. ठीक है, they know the things they know. If they don't know, Hmm. they are very transparent. नहीं Yeah. पता, I'll figure it out हाँ. over the time. ठीक है. अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे. हर डिजाइनर्स, हर क्रिएटिव Hmm. फील्ड, सीवी से आपका कुछ पता नहीं चलता कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है. ठीक है. Hmm. प्रोडक्ट डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, मोशन डिजाइन, एनी क्रिएटिव फील्ड, यू हैव टू हैव अ गुड पोर्टफोलियो. ठीक है. Yes. मोशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन स्पेसिफिकली के अंदर फाइनल प्रोडक्ट दिखाओ, वो आपका पोर्टफोलियो हो जाता है. बट उसमें Hmm. भी एक पॉइंट है जो मुझे ऐड करना है. बट प्रोडक्ट डिजाइन इज समथिंग जहाँ पे केस स्टडीज आती हैं. ठीक है. नो वन वांट टू नो कि उस बटन के अंदर कितने कलर्स हैं अगर वो बटन सही चलता नहीं है. Yes. ठीक है. Yes. 100%. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जहां आपको ये पता होना चाहिए कि यार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मेरे पास नहीं तो किसी ना किसी के पास तो हो गई. Hmm. ठीक है. बट मैं उस प्रॉब्लम, क्या वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैं केस स्टडी बना भी रही हूँ. ठीक है. क्योंकि अगर दुनिया में 2025 के अंदर हर प्रोडक्ट इटरेशन ही है, तो मैं कैसे बोलूं कि ये मैंने सॉल्व करा है. ठीक है. मुझे लग रहा है मैंने सॉल्व करा है. ठीक है. ये बहुत बड़ी डिबेट हुई थी मेरे दोस्त के साथ. ही इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट डिजाइनर. मैंने बोला एक बात बताओ, यू मेक अ केस स्टडी, मैं कैसे मानूं कि तुमने प्रॉब्लम वेरीफाई करी है. Hmm. क्योंकि तुम्हारे जैसी 10 और ऐप्स हैं ऐप स्टोर पे और 9 में वो चीज पहले से है. ठीक है. तो तुमने ये भी तो करा हो सकता है कि तुमने वो ऐप खोली, तुम्हें वो फीचर समझ में आया, तुमने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करी और वो छाप दी. Hmm. क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग इन अदर फील्ड्स बहुत सारी होती हैं. वी एज अ मोशन डिजाइनर वी डू रिवर्स इंजीनियरिंग एज वेल, एज इन के I make one frame and I make another frame and I'm thinking how to combine it. Yeah. I can reverse frame any of the videos, any of the ideation or any of the referencing that I'm doing. कि ठीक है यार, ये reference मैंने देखा था, I think this point is making sense and I can put this frame into it and that makes sense कि मैं यहाँ से यहाँ कैसे जाऊंगा. Hmm. प्रोडक्ट में भी सेम है. ठीक है. हाउ डू यू थिंक 1.5 साल 2 साल के बाद पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो कहाँ होना चाहिए. ठीक है. और पोर्टफोलियो में दिखाना क्या चाहिए प्रोडक्ट डिजाइनर्स को. So portfolio is honestly one of the shockers that I got after I joined my job. क्योंकि यूनिवर्सिटी में पोर्टफोलियो बनाना इज रिलेटिवली इजी, एवरीथिंग इज वेरी लीनियर. आपको एक थीम मिलती है, फिर आप उस पर रिसर्च करते हो, प्रॉब्लम ढूंढते हो, लोगों से बात करते हो, यू फाइंड अ सोल्यूशन. इट्स वेरी लीनियर. वर्क प्लेस में दैट्स नॉट द केस. नथिंग इज लीनियर. हर टू चीज बी इज टू बी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसके बारे में अलग सोचता हूँ. बड़ा बड़ा आसान होता है. आई गिव यू अ टिप, बट यस आई वांटेड टू हियर कि आपको क्या लगता है पहले. so nothing was linear. So I was also very stuck with my portfolio कि मैं किस तरह से लिखूं कि उतना लीनियर तो हो नहीं रहा. कभी कभी कस्टमर से आप बाद में बात कर रहे हो, बिजनेस की तरफ से एक वो आया कि हमें ये चीज चाहिए, एंड देन यू टॉक टू कस्टमर्स और रियलाइज होता है कि ये तो चाहिए ही नहीं थी. So far what I have figured out, एक तो portfolio is super important or it should be on a public platform so that it's easy access. I've heard so many alumni IBS के जो अब अपने खुद के startups जिनके हैं, and they say कि ओ हमारे पास PDF files आती हैं, हम खोलते भी नहीं because they're so heavy कि हम download करेंगे हमारे पूरा computer का storage भर जाएगा, हम देखते ही नहीं है. So somewhere public, hopefully a website. But उसके अलावा जो मैंने figure out किया है वो अब तक ये कि I think how it fits into your context. Telling that is very important. So I can, yes, take inspiration from of a feature from some other app, but वो मैंने अपने context में कैसे बिठाया है
That matters. So my app can have a lot of features similar to other apps, but वो मेरे persona पे किस तरह से, मैं अगर 40+ year old women को target कर रही हूँ, तो how does that context help them? मैंने उस feature पे क्या change किया कि वो उनके काम आए, not कि ओ ओके मैंने बस ये inspiration दी थी और मैंने इसको अपने उस पे लगा दिया है. You can't do that anyway as a product designer. So I think it's really that कि आपने अपने users के लिए वो चीज useful कैसे बनाई, even if it is an iteration of something else. मैनेज कैसे करते हो आप? वो तो ठीक है, पता चल गया कि करना क्या है। मैनेज कैसे Portfolio. करना? मतलब यू आर सेइंग कि जब यूनिवर्सिटी में तो आसान था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आसान इसलिए था कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ वही करना है, Yeah. ठीक है। व्हाट थॉट प्रोसेस यू हैव इन माइंड कि मैनेज कैसे करूंगी, क्योंकि अपलोड करने का टाइम तो नहीं मिल रहा, ठीक है। और अगर मैं आज बनाई हुई चीज को 2 साल बाद बना के डालूंगी तो कोई ताल्लुक ही नहीं रखता। For sure. So व्हाट्स योर what थॉट प्रोसेस? मैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं जो करता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि दूसरे लोग क्या सोचते होंगे। So मैंने इसका एक तरीका जो निकाला है, मैंने Microsoft Excel निकाला है, where हम्म। I have columns, और हर हम्म। कॉलम पे मैंने लिख दिया कि फीचर क्या है, उसकी हम्म। enhancement थी, प्रॉब्लम थी, क्या थी वो लिखा है. हम्म। फिर the actual problem where for which the feature was made, and हम्म। then the impact that the feature had. तो मैं बस हम्म। वो लिख दी. It's a very vague, क्योंकि you just honestly need like something to rub your brain कि ये किया था, ये मसला था, and then वो उसकी details at least for me मुझे याद आ जाती है. So हम्म। मैं एक एक्सेल शीट मेंटेन रखती हूँ, मैं अपने पास हम्म। पहले जब प्रॉब्लम आती है मैं ऐसे अपने नोट्स में कहीं पे भी लिख लेती हूँ, एंड देन लेटर ऑन मंथ 2 months के बाद मैं अपनी एक्सेल शीट अपडेट करती हूँ, उसमें मैं लिखती हूँ, एंड देन जब पोर्टफोलियो पे आता है तो आई जस्ट रेफर टू द एक्सेल शीट. ठीक है। मैंने एक चीज बड़ी अच्छे से क्रैक करी, वो ये होती है, पोर्टफोलियो होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पोर्टफोलियो टाइम पर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पब्लिक शब्लिक सबका होता है, ठीक है। मेरी वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट होनी चाहिए। बहुत बहुत ड्रास्टिकल चेंज होता है जब आप .com .cc या .xyz की एक लिंक भेजते हैं, rather than कि वो एक थर्ड पार्टी लिंक होता है, ठीक है। यू कैन विन ओवर योर क्लाइंट्स वेरी वेल। मुझे ऐसा लगता है पोर्टफोलियो वहाँ होना चाहिए जहाँ पे आपकी ऑडियंस है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे आम बेचने हैं, तो मैं रोड के बीच में चौरंगी पे खड़े होकर बोलूंगा आम चाहिए। सो आई टेक इट एज इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एंड पोस्ट इट as soon as it's on public. People really wanted to know who did that, ठीक है। लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि लोगों को ये जरूर पता है कि ये चीज आई है, और वो उसकी हाइप शुरू शुरू में होती है। सो व्हाट आई डू इज, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दिस इज व्हाट आई डिड, तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने सीखी। आई कैन रेफर यू दैट एज वेल, बट मैंने क्या करा कि मैं एक दिन बैठा हुआ था, एंड आई गॉट एन आइडिया कि यार लेट्स टेक वन ऑफ माई वीडियोज जो मैंने आज से कुछ 5-6 साल 7 साल पहले बनाई है, और अभी का VFX ब्रेक डाउन डालता हूँ किसी कमर्शियल का जो मैंने अभी करा है रिसेंटली। तो मैंने उसके अंदर कुछ नहीं करा, मैंने 2 फ्रेम्स बनाए, ऊपर वाले फ्रेम में पुरानी वीडियो रखी, नीचे वाले फ्रेम में नया काम रखा, और मैंने एक चीज लिख के डाल दी कि यार XYZ चीजें थी, पहले मैं ऐसे काम करता था, अब मैं ऐसे काम करता हूँ, तो अब मैं ग्रोथ देख रहा हूँ अपनी। इट गोज ब्लास्ट। लोगों लोगों क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है कि प्रोग्रेस जाग आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद आई कैन वाउच एनीथिंग कि इफ यू थिंक कि मेरे पोर्टफोलियो में वो चीज का कैलिबर वैसा नहीं है, तो आप देख सकते हो कि 7 साल में कहाँ से कहाँ तक आ गया। एक तो ये चीज कि ब्रेक डाउन योर प्रोसेस, अपनी चीज को तोड़ के समझाओ, क्योंकि देखने वाला प्रोडक्ट डिजाइनर नहीं है, और 99% हायर करने वाला भी प्रोडक्ट डिजाइनर नहीं है, वो एक HR है जिसके पास एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। दूसरा ये कि IC पोर्टफोलियो के जब लोहा गर्म हो तब मार दो, ठीक है। आपके पास एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को अपडेटेड रखते हो, लेकिन वो वेबसाइट ही पब्लिकली कहीं बताते नहीं हो, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि ईशा नवीद की कोई वेबसाइट है, और उस वेबसाइट के अंदर थर्ड पेज के अंदर जो काम डाला है वो अभी डाला है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन सी, यू कैन गो ऑन लिंक्डइन एंड यू कैन सी नाउ-अ-डेज कमर्शियल फाइनलाइज होता है, और कमर्शियल के डायरेक्टर्स, DPs वो फौरन वो चीज शेयर कर देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि आपने बनाई है, ठीक है। क्योंकि हाउ अ नॉर्मल ब्रेन वर्क्स इज लाइक, आई कैन गो थ्रू थिंग्स, मैं कहता हूँ यार बिल्कुल यही सेम चीज हमें भी चाहिए,
बट ये पता नहीं बनाई किसने. इफ आई कैन स्क्रॉल और तीसरे चौथे स्क्रॉल में मुझे पता चल जाए बनाई इसने. दूसरा That is फायदा दूसरा फायदा कि अगर किसी इंसान को वही एग्जैक्ट चीज चाहिए तो आपके पास वो चीज बनी हुई है. यू कैन सेल द सर्विस. आपको वो hmm. चीज चाहिए, चेंज द नेम, change the dynamics according to their brand and sell it. And Yes. that is real time check. ठीक है. क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्गर टर्म में आपके पास एक पूरा एसेट मैनेजमेंट रहेगा. लेकिन हो सकता है कि आपको कोई बंदा फॉलो करता हो, उसको अभी आपके काम की जरूरत ना हो. Hmm. ठीक है. सो दैट हैपेंस कि व्हेन नया पे की अभी रीब्रांडिंग हुई थी, नया पे की रीब्रांडिंग इज डन बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स. एंड वो जैसे ही रीब्रांडिंग की पोस्ट है और मैंने उसको मैसेज कर दिया, मैं कहा, ये तुमने बनाया? उसने कहा हाँ. मैं कहा, अच्छा ठीक है, Yeah. सही है. सो उससे क्या होता है कि अगर लोगों को पता है कि उसने बनाया ना, तो लोगों को अभी जरूरत बेशक ना हो, लेकिन 6 महीने बाद पता होगा कि उस तरीके का काम इस बंदे को आता है और वो उसको रीच आउट करेंगे. एक और इम्पोर्टेंट चीज बड़ी होती है जो मैंने नोटिस करी है कि नो द पीपल हु विल हायर यू Hmm. एंड डोंट रीच आउट टू पीपल हु डोंट हैव द पावर टू हायर यू. ठीक है. सो इफ अ पर्सन हैज द एबिलिटी एंड द रिसोर्स और वो उस लेवल पर है कि वो आपको हायर कर सकता है, so you should have hiring managers of specific companies so they know you and you know them, rather than adding Yeah. random product designers. क्योंकि अगर मैं मुझे कल को सिपाही से वजीर बनना है, तो वजीर से दोस्ती करूंगा तो वजीर बनूंगा ना, वरना सिपाहियां अपने अगर सिपाही अपने पोर्टफोलियो में रखता रहूंगा तो सारे सारे सिपाही रहेंगे. So this is So true. also one more thing. I think we have discussed a lot of good pointers during this session, and I'm pretty much sure throughout your overall journey will help a lot of people to understand that. At the final of the things, is there any tip and advice or thought process? Because being a Gen Z, you have two very good powers. You are very blunt. Hmm. आज ये है, कल नहीं होगा, तो कल जो होगा वो देख लेंगे. एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग विद मिलीनियल जिनके पास वो एक्सपीरियंस है. Yeah. ठीक है. एनी टिप एंड ट्रिक दैट यू वांटेड टू शेयर टू द ऑडियंस, क्या ये वो चीजें जो लोगों को करनी चाहिए या आपने अभी तक सीखी हो, ताकि लोगों को पता चल सके. I think to not hesitate in reaching out to people, because this is something that I used to struggle with. मैं लोगों को हम्म. खुद reach out नहीं करती थी. But any time that I have, no one has turned their back. People are very helpful. I'm sure होंगे लोग जो नहीं होते होंगे, but most people are very helpful. And honestly, what's the loss? अगर वो नहीं reply करते तो वो नहीं करते. अगर वो करते हैं, then that's beneficial to you. So I think that and asking questions. I learned in university that stupid questions are not a thing, and they're truly not. हम अभी भी it's been like over a year in बाजार, मगर अगर अभी भी मैं किसी PM से जाकर किसी चीज का let's say acronym नहीं मुझे पता चल रहा, no one judges me for not knowing it. They explain it and they explain it really well, और इसमें फायदा मेरा ही है. आगे जाके कोई भी conversation हो रहा है, I can easily take part in it because again I know what it means, and none of that happens unless you step out of your comfort zone and you make that call कि मुझे reach out करना है और मुझे ये चीजें पूछनी है. So I think really that kid not to be hesitant. Life is very short. No one remembers आपकी गलतियाँ. Just move on with it. Ask your thing and go. Fair enough. I think it's a very good advice. Thank you so much, Isha. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. Just for the audience, if you wanted to reach out to Isha, you can write a proper message to her on LinkedIn and she will reply. क्योंकि उन्होंने मुझे करा है तो वो आपको भी जरूर करेंगी. हाय हेलो के मैसेज पे एक्सपेक्ट मत करें कि रिप्लाई आएगा, बिकॉज शी इज ऑल्सो वर्किंग एज अ कस्टमर केयर ऑफिस इन बाजार, तो उनको कॉल्स करती होती दूसरे लोगों को भी. But thank you so much, Isha. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you in this session. I'm pretty much sure a lot of people will learn a lot of good things. So thank you so much for your time. Thank you for having me.